Good morning, students. Good morning. Good morning, sir. So, our this Good session is morning. very good morning to all, and our this session is for relational database management system. Before starting the session, I would like to see the summary of the see the content of the session, that is a relational database management system. This is for basic, okay. And in session 1 we will see appreciate the concept of database management system. Further, in session 2, create and edit tables using wizard and SQL commands. In session 3 we will see perform operation on table, and next session we will see that retrieve data using query, and the session 5 for create forms and report using wizards. So we will talk about each and every points in every session. The first thing is that what is database management system. So the concept and the definition is very clear. To manage the data, we are in need of any management system. That management system is called database management system. And now going to see what's here on the screen. A database is an organized collection of data. You can visualize it as container of information because the database contains several type of information. That's why this is also called container or container of information. Okay. Okay, sir. Okay, sir. Okay. Okay, for better understanding, there are several examples. The data is typically organized to model relevant aspect of reality. For example, the availability of rooms in hotels in a way that support process requiring his information. For example, finding a hotel with vacancies. अगर आपको okay, so when we are going to see the अगर आपके घर में बिल्डिंग आपकी बिल्डिंग है या फिर आपकी बुक्स है लाइक एज बहुत सारी चीज़ें हैं, आपकी नोटबुक है, इन सभी चीज़ों को मैनेज करने के लिए अलग अलग टेक्निक यूज़ करते हो, अलग अलग लॉजिक यूज़ करते हो. जैसे अगर किसी होटल को आप देखेंगे, किसी होटल के कमरे नंबर को आप देखेंगे, तो होटल के कमरे नंबर कैसे होते हैं, क्या क्या लिखा होता है, कमरा नंबर क्या क्या हो सकता है, उसका रूम नंबर जो होता है क्या क्या हो सकता है होटल B का. 201 ओके. So 201, 301. 602. Okay. So, have you think about that? What is 301? What is 402? सर मैं बताऊं. हाँ बताइए. सर 305 मतलब थर्ड फ्लोर पर रूम नंबर 5. Okay. And any more? और कोई example? So basically, these are like kind of their ID for their each and every single room, just for to identity which room number is yours. Okay, good. And any more? Actually, all the rooms managed in a way, her all it mean to say that every room in hotel is managed with their own number by their floor. If the number of floor is 2 and the room number is 3, then the room number will be 203. Okay, it denotes that on second floor there are room number 3 is yours. That's why this is called 203. Then this is the way to manage the data, how we are managing our data. This is called database management system. For this we have several options, like as we also manage the data in Excel sheet, a spreadsheet, and in our daily routine we also manage our data, like as if we have the rack of book, we are going to manage data in this way, that this is the block for science book, this is the block for arts book, this is the block for magazine, this is the block for note sheet, this is block for your daily copy, like that. तो आप लोग क्या करते हो, अपने रैक पे ही डिवाइड करते हो ना, so that you may access these things in simple way. Am I right? Yes, sir. Sir. Yes, sir. Yes, sir. Sir.
जैसे आपने घर में ही अपने Yes, रैक है, sir. कॉपी कॉपी रखते हो, बुक्स रखते हो, तो बुक रखने के लिए क्या करते हो, एक ही रैक में पार्टीशन कर देते हो अलग अलग पार्ट में, कि ये साइंस वाली बुक है, ये आर्ट्स वाली बुक है, यहाँ पे मेरी रफ कॉपी रखी हुई है, यहाँ पे मेरे रफ नोट शीट रखे हुए हैं, यहाँ पे मेरे इंपॉर्टेंट नोट्स रखे हुए हैं, तो आप उसको डिवाइड कर देते हो. दिस इज आल्सो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. नो, तो इस बेस पे भी हम अपने डेटाबेस को मैनेज करते हैं. एंड इन सिमिलर वे, जैसे हमारे ओके, देयर इज अ गुड एग्जांपल ऑफ आवर क्लासरूम. जैसे क्लासरूम के यहाँ पर रूम नंबर हैं, या फिर मैंने अपने सिस्टम को, कंप्यूटर सिस्टम को मैनेज किया है. कंप्यूटर सिस्टम के जैसे भी देख रहे हो वहाँ पर अलग अलग आईडी दी हुई है बच्चों की, है ना. तो इस तरह से मैनेज करते हैं. तो जब चीज़ें बड़ी होती जाती है, चीज़ें बड़ी हो जाती है, तो उसके लिए क्या ज़रूरत पड़ती है हमें, एक बड़े स्केल पे फिर किसी टीम की ज़रूरत पड़ती है, किसी एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ती है, बाय द हेल्प ऑफ विच वी कैन मैनेज द डेटा. सो यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. देयर इज अ स्पेशल सॉफ्टवेयर टू मैनेज द डेटा. अब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में क्या क्या करते हैं, सो वी आर गोइंग टू लुक फॉर दैट. A database management system is a software package with computer programs that controls the creation, maintenance, and use of database. Okay. So it allows organization to conveniently develop database for various applications. A database is an integrated collection of data, records, files, and other objects. A database management system allow different user application program to concurrently access the same database. अब जैसे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की बात की जाए, तो स्टूडेंट के जो डेटा है, मान लो जब मेरी आईटी सब्जेक्ट के बच्चे हैं, जितने भी बच्चों के पास आईटी सब्जेक्ट में, उनको मैनेज करने के लिए एक लिस्ट बना ली, एक लिस्ट बना के अपनी कॉपी में रख लिया, ठीक है. अब मुझे उसकी दोबारा ज़रूरत है, तो क्या करेंगे, हो सकता है मैंने उसको अगर कॉपी पे बना ली, दैट मे क्रिएट ए प्रॉब्लम फॉर मी, कि अगर मुझे उसको उस डेटा को दोबारा बनाना पड़े, तो हम क्या करते हैं, उस डेटा को दोबारा बनाने के लिए या तो उसकी कॉपी करेंगे, अदरवाइज फिर से डेटा को फ्रेश मोड में बनाएंगे. बट if I would like to sort or sort by name, sort by roll number, if I would like to sort that students list in by their यूनिक स्टूडेंट आईडी, जो भी है, तो इनके अकॉर्डिंग अगर सॉर्ट करना होता है, तो फिर हमें एक कॉम्प्लिकेशन सी लगती है कि बार बार लिस्ट बनाओ, बार बार उनको रीअरेंज करो, अरेंज करो, तो ये एक प्रॉब्लम सी लगती है. इफ़ तो हम वहाँ पर क्या है, कंप्यूटर सिस्टम का यूज़ करते हैं. कंप्यूटर सिस्टम का यूज़ करने के बाद क्या होता है, कंप्यूटर सिस्टम में अगर मैंने उस चीज़ को मान लो कि MS वर्ड की फाइल में बना ली, या लिब्रे ऑफिस राइटर में वो फाइल को बना लिया हमने, तो फिर उनको सॉर्ट करने में फिर भी प्रॉब्लम होती है. If we are going to make that folder, that file that contain in Excel sheet and LibreOffice Calc, then it will be more beneficial for us, because there is option to sort the list in alphabetical order, in increasing or decreasing order, isn't it? ऐसा होता है ना? Yes, sir. Yes, sir. तो सो हम लोग क्या करते हैं, एक ऐसे प्लेटफॉर्म की ज़रूरत पड़ती है हमें, जहाँ पर कि हम अपने डेटा को मैक्सिमम वे में यूज़ कर पाएँ और उसके साथ मैनिपुलेशन भी आराम से कर पाएँ. सो देयर इज़ डेफिनेशन टू कंट्रोल द क्रिएशन, मेंटेनेंस एंड यूज़ ऑफ डेटाबेस. तो एक ऐसा पैकेज है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक ऐसा पैकेज है बाय द हेल्प ऑफ विच वी कैन क्रिएट द डेटा, मेंटेन द डेटा एंड यूज़ ऑफ डेटाबेस. ठीक है. सो अब डेटाबेस इसके बारे में कुछ और भी जैसे यहाँ पे बताए गए हैं कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, एप्लीकेशंस हैं, लाइक एज well known DBMS includes Oracle, IBM, DBM2, Microsoft SQL, Microsoft Server, Microsoft Access, PostgreSQL, MySQL, Foxpo and SQLite. तो ये कुछ काफ़ी फेमस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, इनके बारे में बताया गया है. अब यहाँ पे एक वर्ड आया, दैट इज रिलेशनल डेटा. दो टाइप के सिस्टम, यहाँ पर डेटाबेस को दो तरह से मैनेज किया जाता है. डेटा कैन बी ऑर्गेनाइज्ड इनटू टू टाइप्स. क्या होता है, फ्लैट फाइल, डेटा इज स्टोर्ड इन ए सिंगल टेबल, यूजुअली सुटेबल फॉर लेस अमाउंट ऑफ डेटा. अगर अमाउंट बहुत लेस है तो उनको आप सिंगल टेबल में मैनेज कर सकते हो, दैट इज फ्लैट फाइल. ओके. एंड रिलेशनल,
Data is stored in multiple tables and tables are linked using a common field. Relational is suitable for medium to large amount of data. रिलेशनल डेटाबेस में क्या है? डेटा इज स्टोर इन मल्टीपल टेबल्स. ओके, यहाँ पर एक की जगह बहुत सारे टेबल होते हैं और वो क्या होते हैं, एक दूसरे से लिंक होते हैं बाय द हेल्प ऑफ देयर कॉमन फील्ड, है ना. जैसे एक डेटा को दूसरे डेटा से मैच कराना है तो कुछ कॉमन होना चाहिए ना. Yes, sir. तो कोई कॉमन फील्ड होना चाहिए तभी वो मैच करेगा, नहीं. Yes, sir. ओके, तो दिस इज अ रिलेशनल डेटाबेस. रिलेशनल इज सुटेबल फॉर मीडियम टू लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा. यहाँ ये बताया गया जैसे फ्लैट फाइल आपका छोटे डेटा अमाउंट के लिए परफेक्ट है या छोटे डेटा अमाउंट के लिए ठीक होता है, बट रिलेशनल में क्या है, वो लार्ज और बड़े अमाउंट के लिए आपको रिलेशनल की ज़रूरत पड़ती है. इसका ये मतलब नहीं है कि आप अगर रिलेशनल डेटाबेस बनाना चाहें तो वो छोटे अमाउंट ऑफ डेटा के लिए नहीं बनेगा. बिल्कुल बन सकता है, क्यों नहीं बनेगा, ठीक है. बट फ्लैट फाइल में आप रिलेशनल डेटाबेस को क्रिएट नहीं कर सकते. फ्लैट फाइल में आप लार्ज डेटा को मैनेज नहीं कर सकते हैं. दैट्स वाई वी आर इन नीड ऑफ रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. सो द कॉन्सेप्ट इज क्लियर अबाउट फ्लैट फाइल और रिलेशनल फाइल. Yes, sir. Yes, sir. बोथ आर द ओके. सो Yes, sir. both are the database management system, but first one is flat file, the second one is relational file. Flat file is called database management system and relational file is called relational database management system. Okay, is there any confusion? No, sir. No. No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. So going for the next one, that is database server. टू स्टोर द इंफॉर्मेशन, जैसे कोई भी इंफॉर्मेशन हम लोग बनाते हैं उसको कहीं पे हमें रखना पड़ता है एक जगह ना. जैसे मान लो कि मैंने आप लोगों को अभी दिया था कि प्रोजेक्ट फाइल बनाओ या फिर आप लोग पोर्टफोलियो बनाओ, तो उसको कहीं पर सेव रखा है ना आपने. देयर इज ए फोल्डर फॉर दैट, है ना. कि जैसे भी आपके पेजेस आपने अरेंज किए हैं, सभी पेज को अरेंज करके आपने कहाँ रखा, एक फोल्डर में डाला. Yes, sir. इन द सेम वे डेटा तो हमारे पास आ गई, बट टू सेव द डेटा, टू keep the data safe, there is need of server that is called database server. So database servers are dedicated computers that hold the actual databases. Actual databases के पास रहेगा, चाहे आप मैनिपुलेट कितना भी कर लो, but the database has their actual values and run only the DBMS and related software. So in database management system server, there are servers dedicated computers that hold the actual database and run only the DBMS and related software. अब उस सर्वर के साथ क्या है, वो जब भी वर्क करेगा तो रिलेशनल डेटाबेस के साथ ही काम करेगा ताकि कोई फाइल लॉस ना हो जाए और फाइल को प्रॉपर वे में सर्वर मैनेज भी रख पाए, है ना. सो Yes, sir. typically database available on the database server are accessed through command line or graphic user interface tools referred to as front end. Database servers are referred to as backend. Such type of data access is referred to as a client server model. Okay, आप लोगों ने पढ़ा था जैसे बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, बीपीएम और बीपीओ पढ़ा था 9th में. हैव यू रिमेंबर अबाउट दैट? Yes, sir. BPM, BPO. Yes, sir. याद है आप लोगों को? Yes, sir. हाँ सर याद है. ओके, तो जैसे कहते हैं ना कि हमारा कुछ लोगों से आपने सुना होगा, आई एम वर्किंग एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड आई एम वर्किंग एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर लाइक एज दैट. और कुछ लोग क्या बोलते हैं, आई एम वर्किंग इन बैक एंड प्रोसेस. आई एम वर्किंग बैक एंड प्रोसेस. सुना है आप लोगों ने? Yes, sir. Yes, sir. तो ये फ्रंट एंड और बैक एंड क्या होता है, तो इस चीज को थोड़ा सा मैं हाईलाइट करना चाहूंगा आप लोगों के सामने. फ्रंट एंड एंड बैक एंड, व्हाट इज दैट? जैसे फॉर एग्जांपल ओके, जैसे पेटीएम पे आप लोग पेमेंट करते हो, पेटीएम, गूगल पे, फोन पे वगैरह यूज करते हो. ओके, Yes, sir. सो व्हाट्स द प्रोसेस ऑफ दैट? आप क्या करते हो, एक कोई क्यूआर कोड होता है, क्यूआर कोड को स्कैन करते हो एंड देन योर पेमेंट गोइंग टू
गोइंग फॉर द प्रोसेस, यही होता है ना, आपने उसको ऑथराइज किया, आपको ये भी नहीं पता चला कि उसका अकाउंट नंबर क्या था, उसका फ़ोन नंबर क्या था, जो भी है उसकी क्या इन्फॉर्मेशन है, कुछ भी नहीं पता चला आपको, एंड यू आर गोइंग टू पे फॉर दैट, राइट? सो दैट Yes, sir. दिस इज फ्रंट एंड, दिस इज फ्रंट एंड। फ्रंट एंड पे क्या हुआ, आपके कैमरे का स्कैनर ऑन हुआ और उसका जो स्कैनर है उसको स्कैन किया एंड यू आर गोइंग टू पे, ये आपका फ्रंट एंड हुआ, ठीक है। बट बैक एंड में क्या हुआ, बैक एंड में ये हुआ कि आपके डेटाबेस से, इट मीन टू से आपके बैंक अकाउंट से आपके पैसे डिडक्ट हुए और वो डिडक्ट होके पैसे कहाँ गए, नेक्स्ट पर्सन के अकाउंट में वो पैसे ट्रांसफर हो गए। दैट वाज द प्रोसेस ऑफ बैक एंड, ठीक है। Okay, sir. जैसे आप लोगों को क्या किया जाता है, पूछा जाता है कि ठीक है, जैसे कमरा बुक करने जाते हो, होटल में कमरा बुक करने जाते हो, तो वो क्या करता है, आपको आपका नाम लिखता है एंड देन आपके नाम को रजिस्टर कर देता है वहाँ पे अपने डेटाबेस में, वो फीड कर देता है, पूछता है किसी भी, जैसे आप लोग शॉपिंग मॉल में जाते हो तो वो पूछता है आपसे व्हाट्स योर कॉन्टैक्ट नंबर, ओके। जब आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर देते हो वहाँ पे, तो वो क्या करते हैं, आपको ओकेजनली जो भी होता है ना, जो भी स्कीम वगैरह आते हैं, तो आपके फ़ोन पे मैसेज आते हैं ऐसा। Yes, sir. तो वो फ्रंट एंड में क्या किया, सिर्फ उसने नंबर फीड किया, एंड बैक एंड प्रोसेस इज दैट व्हेनेवर द occasion will about to come or any offer will come, then they will notify you। तो ये बैक एंड का प्रोसेस होता है। तो यहाँ पर डेटाबेस को जो मैनेज करते हैं देयर इज आल्सो ऑफ ऑप्शन ऑफ फ्रंट एंड एंड बैक एंड। फॉर दिस आई हैव आई हैव अ गुड एग्जांपल फॉर दैट। सो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट, दैट इज अ very known well site, that is Flipkart, okay. Okay, are you getting my screen? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, So sir. now this, you can see there is a sale is live, okay, sale is live. Now I am this is asking for login, but I am not going to log in right now, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें एक लाइक एज एक वॉच परचेज करनी है, या एक फ़ोन परचेज करना है, या कुछ भी वॉच परचेज करनी है, ठीक है। सो नाउ यहाँ पर देखिए आप, इतने सारे ऑप्शंस हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में, ये फ़ोन है, मोबाइल एसेसरीज है, हेल्थ केयर एप्लीकेशन, टैबलेट्स, लैपटॉप, एंड देयर आर मैनी थिंग्स। ये सभी डेटा को सॉर्ट किया गया क्योंकि इसके पास इतने सारे आइटम्स हैं सेल करने के लिए, इस साइट के पास इतने सारे आइटम हैं सेल करने के लिए। अब उसमें से आपको सर्च करना है, अब उसमें से आपको क्या सर्च करना है, सर्च क्या करना है, मुझे वॉच सर्च करनी है ना, वॉच सर्च करनी है ना। आर यू गेटिंग मी? Yes, sir. Yes, sir. तो Yes, sir. यहाँ पर सबसे बड़ा पॉइंट Yes, क्या sir. होता है कि फ्लिपकार्ट का अपना डेटाबेस बना हुआ है। अब आप थोड़ा सा इमेज कीजिए कि फ्लिपकार्ट डेटाबेस का कोई टेबल बना हुआ है, थोड़े से छोटे लेवल पे सोचिए कि कोई एक्सेल शीट बनी होगी, है ना, ऐसा कोई एक्सेल शीट बनी होगी जिसमें ना सभी कुछ लिखा हुआ होगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स वाला, टीवी अप्लायंस, मैन, वुमेन, बेबी, किड्स, होम फर्नीचर, जहाँ जितने भी ऑप्शंस दिख रहे हैं ना, जस्ट सपोज दैट ये सभी एक टेबल है, ये सभी एक टेबल है, अलग हेलो अलग टेबल है ना। अनुराधा, ऑफिस में आना अनुराधा। सो यू मे फाइंड इन हियर कि आपको ऐसा कुछ एज्यूम कर पा रहे हैं, ऐसा कुछ आपको समझ में आ रहा है कि अलग अलग टेबल बना हुआ है, कुछ ऐसा सोचो, 1 मिनट के लिए सोचो। Yes, sir. Yes, sir. आपको फील हो रहा है कि एक टेबल बना हुआ है, टेबल में अलग अलग कॉलम बने हुए हैं, एक टेबल का हेडिंग दिया हुआ है फ्लिपकार्ट, फ्लिपकार्ट के अंदर अलग अलग टेबल, अलग अलग कॉलम बने हुए हैं जिसमें क्या क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक्स, टीवी अप्लायंस, मैन, वुमेन, बेबी, किड्स, फर्नीचर, है ना, ऐसा एज्यूम कर सकते हो आप लोग। Yes, sir. ओके, अब एज्यूम कर लिया, तो अब देखो वहां पे क्या होता है। अब इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जो, अब इलेक्ट्रॉनिक्स वहां पे बना हुआ था ना, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर एक फिर से एक टेबल क्रिएट हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर फिर एक टेबल क्रिएट हो गया, दैट इज फुटवेयर, मैंस ग्रूमिंग, क्लॉथिंग, विंटर वियर, वॉचेस एंड लाइक ऑल, ठीक है। तो इस तरह एक दूसरा टेबल क्रिएट होते जा रहा है, एक दूसरे से रिलेटेड होते जाएगा ना, ठीक है। तो Yes, sir. I would like to show the relation between that files. Okay.
अब यहाँ पर देखिए क्या होता है, हम लोग कुछ नहीं करने जा रहे हैं, हमें टेबल नजर आ रही है क्या? टेबल नजर आ रही है कहीं? कहीं टेबल है? No, sir. But in database there are definitely the tables of these things. जितने भी ऑप्शंस यहाँ दिख रहे हैं लाइक एज MI, Realme, Samsung, Inflix, Oppo, सबके अलग अलग टेबल बने हुए हैं, सबके अलग अलग टेबल बने हुए होंगे एंड ऑल द टेबल्स आर गोइंग टू कनेक्ट विद ईच अदर. ठीक है, this is the example of relational database management system. And now the best thing of that is there are two words in database management system, that is front end and back end. This one is your front end, this is one is your फ्रंट एंड. जो आपके सामने नजर आ रहा है वो फ्रंट एंड है, बट इसके बैक एंड में जो प्रोसेस चल रहा है दैट इज योर बैक एंड प्रोसेस. ओके, so there is a very good example right now. You have that all of you have submitted your art integrated learning project, right? Yes, sir. Now I am going to select anyone. जैसे आप लोगों ने ये बनाया, ठीक है, आपके सामने ये डेटाबेस नजर आया क्या? See, आपके सामने ये नजर आया था. You have seen this form only. आपको सिर्फ ये फॉर्म नजर आया था. Am I right? Yes, sir. Yes, sir. और मेरे पास जो डेटा अरेंज है, you can see that there are 88 responses. This is your front end. This is your front end जो आपको नजर आया. This is your front end जो आपको नजर आया. And this one is back end जो मेरे पास आया. कब किस बच्चे ने कब फॉर्म जमा किया, I have all the data here. Like as सिमरन सामल, इन्होंने अपना रात के 11:03 और 11:03 और 10 सेकेंड हो रहे थे, उसमें मैक्रो सेकेंड भी काउंट किया गया है. तो यहाँ पर आपने जब सबमिट किया तो वो डेट था 16 दिसंबर. इस डेट को आपने सबमिट किया. कहीं से आपसे डेट पूछा गया था? कहीं किसी से डेट पूछा गया? नहीं ना. कोई टाइम पूछा गया? नहीं पूछा गया. But I have the information, and on behalf of that I can say that आपने कब डेटा सबमिट किया है मुझे पता है. मैं आपको बोलता हूँ ना बार बार. तो अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, देखो एक चीज और, अब सब इसको जब सॉर्ट करना है हमें, तो अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे फाइंड आउट करना है. लाइक एज फाइंड, आई एम गोइंग टू फाइंड आउट लाइक एज साक्षी. ओके, SAKSHI साक्षी. नाउ अब पूरा डेटाबेस है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो ना, ये पूरा डेटाबेस है. तो वहां पे मुझे क्या एक वॉच सेलेक्ट करनी है. ठीक है, ओके. नाउ दिस इज ओके. तो यहाँ पर भी क्या हुआ होगा, जब टेबल आपने सेलेक्ट कर ली तो वहां पे वॉच आ गई यहाँ पे. इसी तरह यहाँ पर ये जो पूरा टेबल बना हुआ है, तो यहाँ पे मैंने साक्षी को सर्च किया एंड साक्षी इज रिफ्लेक्टिंग हियर ऑन सीरियल नंबर 81. ठीक है, अब इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो भी होगी वो मैं देख सकता हूँ. लाइक एज इस लिंक पर अगर मैं क्लिक कर दूं तो मुझे पता चलेगा साक्षी ने क्या अपलोड किया है ना. तो नाउ कैन यू डिफाइन, आपको ये समझ में आ गया कि फ्रंट एंड कैसे काम कर रहा है, बैक एंड कैसे काम कर रहा है? Yes, sir. दिस इज प्रोजेक्ट ऑफ साक्षी. ओके, तो साक्षी ने ये प्रोजेक्ट अपना सबमिट किया है. तो इसी तरह ये होता है आपका फ्रंट एंड एंड बैक एंड, जिसके थ्रू हम अपना डेटाबेस को मैनेज करते हैं और देखते हैं. सो नाउ दिस इज द front end inference tools, that is okay. Typically database available on the database server are accessed through command line or graphic user interface tools referred to as front ends. Database server are referred to as back end. So यहाँ पे देखिए database servers are referred to as back end. And now such type of data access is referred to as a client server model. That's why this database is called client server model. Client कौन हुआ, जिसने सर्च किया, and server कौन हुआ, जिसके database को हमने सर्च किया. Getting the points? Is that clear or not? Yes, sir. Clear. So now last line for today, that is a relational database management system is a database management system that is based on the relational model as introduced by E.F. Codd of IBM San Jose Research Laboratory. Most popular database currently in use are based on the relational database model.
तो सबसे पहले ये EF कोड एक हमारे साइंटिस्ट रहे थे, रिसर्चर जो थे, उन्होंने ये बनाया था और तब से रिलेशनल डेटाबेस का यूज़ हो रहा है। और रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में क्या होता है, बेस्ड ऑन रिलेशनल मॉडल्स। ओके, ओके अब सर। यहाँ पर आपको डेटाबेस कॉन्सेप्ट के बारे में बताया गया है। दैट इज अभी आपकी क्लास है, अभी आपकी क्लास है क्या? नो सर। अभी नो सर। कोई क्लास नहीं है ना? सो इसको 5 मिनट और आगे कर सकते हैं क्लास को? यस सर। यस सर। No, sir. नो सर? यस सर। Who is saying no, यस sir? सर। Okay, so there is last 5 minute for the मैं डेटाबेस के मैं कुछ आपको बताना चाहूँगा। डेटाबेस कॉन्सेप्ट, ये लास्ट पैराग्राफ होगा आज के सेशन के लिए। So database contains objects that are used for storing and managing information. इनफैक्ट डेटाबेस में हम क्या करते हैं, हमारे जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं उसको हम स्टोर करते हैं और मैनेज करते हैं। टू अंडरस्टैंड ए डेटाबेस इन वेरी सिंपल लैंग्वेज, लेट्स लुक एट एग्जांपल ऑफ योर एड्रेस बुक. What do you store in an address book? You may have people's name, people address, people phone number, and maybe even people's birthday. There is a common element here. People is the example. यहाँ पे देखिए पीपल का नाम है, पीपल का जो भी कोई पर्सन है तो उसका बर्थडे है, पीपल का उस पर्सन का एड्रेस है, कॉन्टैक्ट नंबर है, तो वहाँ पे वो पर्सन कॉमन है। ओके, सो दैट इज कॉमन, दैट इज पीपल इज कॉमन हियर। इन दिस एग्जाम्पल इच पर्सन इज कंसिडर्ड एन आइटम। पर्सन को क्या किया गया, आइटम कंसिडर किया गया। सो एन आइटम इज व्हाट द डेटाबेस स्टोरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट। अब जैसे मान लो स्टूडेंट है, स्टूडेंट नाम का एक डेटाबेस बनाया, तो स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन लाइक इस स्टूडेंट का नाम, स्टूडेंट का रोल नंबर, स्टूडेंट्स क्लास, स्टूडेंट्स कॉन्टैक्ट नंबर, स्टूडेंट एड्रेस, स्टूडेंट बैंक अकाउंट नंबर, UID नंबर एंड मैनी थिंग्स आर देयर। तो वहाँ पर मेन क्या है, किसकी इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, इस इन्फॉर्मेशन किसकी है मेरे पास, स्टूडेंट की। तो सर स्टूडेंट, स्टूडेंट की। ओके, तो स्टूडेंट को एक आइटम माना गया कि स्टूडेंट एक आइटम है। इसके बारे में जो पर्टिकुलर्स होंगे उसको क्या कहते हैं यहाँ देखते हैं। When you were recording information in your address book, what did you ask the people? What is your address? What is your phone number? Each question that we ask about our item is a field. जो भी आपने पूछा like as your name, roll number, contact number, address, UID, each and everything is called field. ठीक है? Is that okay? यस सर। ओके सर। Yes, sir. ओके सर। ओके सर। Now say you make new friends and want to add their information to address book. You will ask question, get the answer and create a new record. जैसे मान लो मैंने स्टूडेंट की 10th A वाले सभी बच्चों के रिकॉर्ड को ले लिया। अब क्या हुआ, मैं नए रिकॉर्ड, अब नए इट मीन टू से गोइंग टू ऐड न्यू आइटम्स, दैट इज कॉल्ड न्यू रिकॉर्ड। एक बच्चे की इन्फॉर्मेशन ली, अब 10th A में दूसरा बच्चा जो है उसकी इन्फॉर्मेशन ली, तो हमने क्या किया, एक आइटम हमारे पास रोल नंबर 1 था, दूसरा आइटम क्या आया, रोल नंबर 2, तीसरा क्या आया, रोल नंबर 4, इसी तरह चलता है। तो दिस इज कॉल्ड रिकॉर्ड। क्या हुआ, रोल नंबर 1 का रिकॉर्ड है, दिस इज रिकॉर्ड ऑफ दैट। ओके, so a record is a set of information made of fields stored in database. About one of the fields, a value is the actual text or numeric amount of data that you put in while adding information to your database. When you put all the information together in a grid like you do in a spreadsheet, a collection of similar record create a table. जैसे आप लोग डेटाबेस को, जैसे आप लोग MS एक्सेल में या एक्सेल स्प्रेडशीट में या कैल्क लिब्रे ऑफिस कैल्क में आप लोग क्या करते हो, एक जैसे हम लोगों का यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल जो जरूर लूँगा मैं, दैट इज अभी दिस इज लास्ट फॉर। अब यहाँ पे देखिए एक मान लो निकिता कोई है, निकिता के बारे में इंफॉर्मेशन क्या क्या है, इसने डेटा कब सबमिट किया, कौन से क्लास की है, कौन से सेक्शंस की है, रोल नंबर क्या है इसका, इसने कौन सा डेटा यहाँ पे सबमिट किया, ईच एंड एवरीथिंग। तो यहाँ पर रिकॉर्ड क्या हो जाएगा, ये पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन जो भी, दिस इज कॉल्ड रिकॉर्ड। ठीक है, कलेक्शन ऑफ द पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन ऑफ एनी पर्सन और एनीथिंग, एनी ऑब्जेक्ट, दैट इज कॉल्ड रिकॉर्ड। ठीक है, अब यहाँ पर आइटम कौन कौन से हो जाएंगे, आइटम्स क्या होगा बताएंगे कोई,
यहाँ पर दो चीजें निकिता। यहाँ पर हमने दो चीजें देखी, आइटम फील्ड एंड रिकॉर्ड। ठीक है, आइटम फील्ड एंड रिकॉर्ड तीन चीजें हैं यहाँ पे। तो इसमें रिकॉर्ड तो ये हो जाएगा कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, दैट इज कॉल्ड रिकॉर्ड। अब यहाँ पर आइटम कौन कौन सा होगा, यहाँ पे आइटम्स कौन कौन से हैं? Student name, class, section, roll number. इज दैट आइटम और फील्ड? Item. एक्चुअली आइटम में आएगा आपका प्रेरणा, सिमरन, निकिता, श्रुति, ये सभी आइटम्स हो गए, ठीक है, क्योंकि इनके बारे में इंफॉर्मेशन है। एंड द फील्ड इज स्टूडेंट नेम, क्लास, सेक्शन, क्लास रोल नंबर, दीज आर कॉल्ड फील्ड। ठीक है, ठीक है ना? Okay, sir. एंड द इंफॉर्मेशन अबाउट ए पर्टिकुलर पर्सन इज कॉल्ड रिकॉर्ड। किसी एक, जैसे सिमरन का रिकॉर्ड दीजिए, हमें प्रेरणा का रिकॉर्ड दीजिए, तो कलेक्शन ऑफ ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू प्रेरणा इज कॉल्ड रिकॉर्ड। ठीक है, तो देर आर थ्री वर्ड्स, आइटम, फील्ड एंड रिकॉर्ड। सो इज दैट क्लियर? द पर्टिकुलर नेम, द जिसके बारे में बात कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड, Yes, sir. जिसके बारे में बात कर रहे हैं, जिस ऑब्जेक्ट के बारे में, जिस पर्सन के बारे में, दैट इज कॉल्ड योर आइटम। एंड जिस फील्ड के बारे में बात कर रहे हैं, ऑल द फील्ड्स इज कॉल्ड योर, ऑल द फील्ड इज कॉल्ड योर, क्या बोलेंगे फील्ड को? सॉरी, दिस इज, Record. जी नहीं, दिस इज कॉल्ड फील्ड, दिस इज कॉल्ड फील्ड। ठीक है, तो एक चीज हो गया आइटम, दूसरा हो गया फील्ड, एंड एवरी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू समवन और सम पर्सन इन द सेम रो, दैट इज कॉल्ड रिकॉर्ड। ओके, तो दिस इज आइटम एंड दिस इज रिकॉर्ड, दिस इज फील्ड। फील्ड यहाँ पे है टाइम स्टैम्प, स्टूडेंट नेम, क्लास, सेक्शन, रोल नंबर, तो ये सभी फील्ड हो गए। ठीक है, सो द मेन थिंग इज दैट आइटम, फील्ड एंड रिकॉर्ड, एंड नाउ द वैल्यू। द नेक्स्ट थिंग इज दैट प्रतीक्षा का रोल नंबर बताएं, तो प्रतीक्षा का रोल नंबर, तो रोल नंबर इज द वैल्यू, एग्जैक्ट जो यहाँ पे 44 हुआ, दिस इज वैल्यू। प्रतीक्षा हो गया यहाँ पर आइटम, और रोल नंबर हो गया आपका फील्ड, एंड वैल्यू हो गया 44। ठीक है, अगर कोई आपसे क्वेरी करता है व्हाट इज द रोल नंबर ऑफ प्रतीक्षा, तो प्रतीक्षा यहाँ पे आइटम हो गई, और हमारा फील्ड क्या हो गया, फील्ड क्या हुआ यहाँ पे? Roll number. रोल नंबर। और वैल्यू क्या होगी, वैल्यू क्या होगी? दैट इज 44। ओके, Okay, sir. इज दैट क्लियर? Okay, sir. अब मुझे लास्ट में एक बात बताइए, यहाँ पे Yes. सिंपी है, सिंपी क्या है? Yes, sir. सिंपी आइटम है, रिकॉर्ड है, फील्ड है, या फिर आपका वैल्यू है? Item. आइटम। ओके, और Item. क्लास रोल नंबर, दैट इज क्लास रोल नंबर। क्लास रोल नंबर क्या कहलाएगा आपका? आइटम, फील्ड, रिकॉर्ड और Field. वैल्यू, फील्ड। और जो ये 3 है वो क्या कहलाएगा? Value. ओके, Value. सो इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? Sir. Yes, sir. Yes. So now going to stop this session here, and we will meet in next session, and we will go further for the next topics in this relational database system, and we'll learn more things. Okay, thank you for today.